Good evening, everyone. As all of you know, today morning at 11:50 a.m., there was a grenade blast at General Bus Stand, Jammu, in which, unfortunately, we lost one civilian, Mohammad Sharik, who was from Haridwar, Uttarakhand, and 32 other persons, of which 10 are from Jammu province, 11 from Kashmir, and 9 from other states, including 2 unknown persons, received injuries. As soon as we came to learn about the grenade blast, the police party swung into action and, along with the civilians, evacuated all the injured and took them to GMC, where they were treated by the doctors. Unfortunately, Sharik could not survive the surgery that was carried on him. Immediately thereafter, teams had been constituted and they were asked to go into the evidence available and work on the leads. The teams that were constituted tried assessing from the witnesses as to what they had seen, and the CCTV camera, the recordings of the CCTV cameras installed in the area was also taken into custody by the police. Based on the oral testimony of witnesses and the CCTV coverage, we were able to identify a suspect who was wearing a jeans jacket and was carrying a red rucksack. Immediately, all the nakas of Jammu were alerted and they were asked to see if any person with the given DR is moving out of Jammu. The team led by SDPO Nagrota and SHO Nagrota, which was doing the Naka duty checking at Bun Toll Plaza in Nagrota, found this boy who was going out of Jammu. He was apprehended and after apprehension was put to sustained questioning. In the initial rounds of questioning, he has confessed to his crime. His name is Yasir Javed Bhatt. He is son of Javed Ahmed Bhatt, resident of Khanpura, Dasen. He is also known by the name of Arhan. In the preliminary interrogation, he has revealed that he was tasked to throw this grenade by the district commander of Hizbul Mujahideen in Kulgam by the name of Farooq Ahmed Bhatt alias Umar. He had started from Kulgam only yesterday and had reached Jammu in the morning. After doing this heinous act, he was trying to escape, but the alert Naka party at Nagrota was able to apprehend him. If I may request our party to show the... Where is the boy? Where is the boy?
The questions are, if any questions, you can. जैसा कि आप सभी को पता है, आज 11:50 पे सुबह जनरल बस स्टैंड जम्मू पे एक ग्रेनेड ब्लास्ट इंसिडेंट हुआ, जिसमें सिविलियंस जख्मी हुए। इस ब्लास्ट की जैसे ही जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस पार्टी ने मौके पर सिविलियंस के साथ जख्मियों को इवैक्यूएट किया और इवैक्यूएट करके जीएमसी पहुंचाया। जीएमसी पहुंचने पर एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद शारिक है, जिसके फादर का नाम इम्तिजार है और जो कल्याणपुर हरिद्वार का रहने वाला है, वो उसकी मौत हो गई। इसके अलावा 32 और लोग, जिसमें कि 10 जम्मू प्रोविंस के हैं, 11 कश्मीर प्रोविंस के हैं और अन्य स्टेट के 9 लोग हैं। 2 जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई है, जिनका डिटेल्स नहीं पता है, ये मजरूब हुए। जैसे ही ये ग्रेनेड ब्लास्ट की जानकारी मिली थी, हम जिस समय इवैक्यूएशन का काम कर रहे थे, इन पैरेलल कुछ टीम गठित कर दी गई थी, जो कि वहां पर विटनेसेस से ये जानकारी ले रहे थे कि कैसे, किसको मशकूक वहां कोई देखा गया या नहीं। उसी के साथ साथ उस इलाके में जो सीसीटीवी लगे हैं, उन सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया और सीसीटीवी फुटेज की कस्टडी और ओरल टेस्टिमनी को दोनों को साथ जोड़कर मशकूक का पता किया गया और ये पता चला कि एक लड़का जिसने कि जीन्स जैकेट पहनी हुई थी और एक रेड रक्सैक लगाया हुआ था, वो वहां से इस वारदात को अंजाम देने के बाद भागा। इमीडिएटली उस सीसीटीवी ग्रैब को सभी नाका पार्टीज के पास भेजा गया और उनको हिदायत दी गई कि जितनी भी जम्मू से बाहर जाने वाली गाड़ियां हैं, उसकी सख्त चेकिंग की जाए और अगर इस हुलिये का कोई बंदा मिलता है तो उसको एप्रीहेंड किया जाए। एक नाका पार्टी जो कि एसडीपीओ नगरोटा और एसएचओ नगरोटा की जेरे निगरानी बन टोल प्लाजा नगरोटा में लगी हुई थी, उन्होंने इस लड़के को वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ द डीआर एप्रीहेंड किया और एप्रीहेंड करने के बाद हम लोगों ने उससे पूछताछ शुरू करी। इस पूछताछ में पता चला कि इस लड़के का नाम यासीर जावेद भट्ट है, इसके बाप का नाम जावेद अहमद भट्ट है और ये खानपुरा दासेन का रहने वाला है। इसको अरहान के नाम से भी जानते हैं। इसने अपने प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन में अपने जुर्म को कबूल किया और इसने ये भी बताया कि इसको इस काम को सरंजाम देने के लिए फारूक अहमद भट्ट एलियस उमर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का एचएम कमांडर है, उसने टास्क किया था और उसी ने इसको ग्रेनेड भी मुहैया कराया था। ये लड़का कल कुलगाम से जम्मू आया, आज सुबह ये जम्मू पहुंचा है और इसने इस काम को सरंजाम देने के बाद इमीडिएटली भागने की कोशिश करी और जैसा कि आपको मैंने बताया, इसको नगरोटा टोल पोस्ट पे एप्रीहेंड कर लिया गया। ये जो लड़का हमारे पीछे खड़ा है, ये वही लड़का है। Thank you. Sir, what was the reason that Jammu bus stand was targeted by the terrorists? What was the reason behind Jammu bus stand being targeted, sir? सर, जैसे आपने कहा, what was the reason? हिजबुल मुजाहिदीन ने इसको टास्क दिया था। इससे पहले भी जो 2 ग्रेनेड ब्लास्ट हुए हैं, क्या वो इसी ग्रुप ने किए हैं? इसकी जानकारी अभी जब इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगी और अगर मिलेगी तो हम आपसे शेयर कर लेंगे। एक एक करके पूछें तभी समझ में। अभी ये कहना मेरे लिए संभव नहीं है कि इसके साथ और कोई इन्वॉल्व। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे सिर्फ प्रिलिमिनरी पूछताछ हो पाई है।
जब इससे डिटेल्ड इंटरोगेशन होगा तब हम इस जानकारी को हासिल कर पाएंगे कि क्या इसके साथ और भी कोई इन्वॉल्व था या नहीं। सर ये कितना बड़ा सक्सेस है सर जम्मू पुलिस के लिए, कितना बड़ा ये सक्सेस है जो इसको मिला सर? ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जिसने इस काम को किया है वाकई सराहनीय काम है। और ये ग्रेनेड ब्लास्ट 11:50 में हुआ और चंद घंटों में पुलिस ने कार्रवाई करके इस बंदे को नैब किया है। इसलिए ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए ये सुबह में जम्मू पहुंचा है, ये सुबह में जम्मू पहुंचा है। एक अभी ये एसरटेन कर रहे हैं, यासिर की उम्र अभी एसरटेन कर रहे हैं। इन जितनी भी अभी इनपुट्स आती हैं वो सभी क्राउडेड प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस, ये जेनरिक इनपुट्स होती हैं। इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है कि इसको क्या स्पेसिफिक टारगेट दिया गया था या इसको जेनरिक टारगेट दिया गया था। एक एक करके पूछेंगे। जम्मू तक कितने पुलिस के नाके हैं, कैसे ये इस तरह के उठ के यहाँ से आ गया? चेकिंग ऐसी होती है, क्या वो करप्शन के लिए चेकिंग होती है कि वाकई में किसी को पकड़ने की होती है? ये आपका जो सवाल है इसका मैं क्या अर्थ लगाऊं? नाके पर ही अगर पकड़ा गया बंदा तो जो आप कह रहे हैं ये बेहुदा है। instead of appreciating the work that is done, I mean, do you concede this, that it is an important success on the part of the police party over there that they could apprehend him? सर इसमें तो आपने ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बताया कि जी अभी ये सब इतनी जानकारी नहीं, he has brought it from Kashmir. Any specific reason why the general bus stand was targeted, sir? That is because it is a crowded place and it has maximum impact. कोई स्पेसिफिक इनपुट ऐसी नहीं, कोई जेनरिक इनपुट्स आते रहते हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक इनपुट इस तरह। मोटिव क्या था? कम्युनल टेंशन फैलाना था? वो तफ्तीश में ये अभी तफ्तीश करेंगे तो आपको बताएंगे मोटिव के बारे में।